There are known knowns, there are known unknowns, and there are unknown unknowns. This is how Jaane Anjane started last year, where in season 1, we shared the unknown stories of known people from the security fraternity. However, this unknown, unclear, uncertain, unpredictable have been the buzzwords for last 2 years. हम बात कर रहे हैं कोरोना या कोविड-19 की। इसने मानव जीवन को स्टैंड स्टिल कर दिया। बिजनेसेस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ऑफिसेज, यहाँ तक कि पूरे देश अंडर लॉकडाउन है पिछले 2 साल से। कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं। बट एक सेक्टर, एक समुदाय, एक व्यवसाय ऐसा है जिसने पहले से अधिक काम किया है, और मैं इस समय बात कर रहा हूँ मेडिकल और हेल्थ केयर वर्कर्स की। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस सर्विसेज और सभी सपोर्ट स्टाफ ने काम किया और अभी भी अथक निस्वार्थ भाव से और बिना किसी शिकायत के काम कर रहे हैं। वी कैन नॉट थैंक देम इनफ फॉर देयर सिंसियरिटी, डेडिकेशन, strength. Season 2 of Jaane Anjane is an attempt to pay our gratitude to the healthcare fraternity, offer our regards to the medical staff, and get to know more about them. So, with a pinch of a prick, we bring to you Jaane Anjane, Meri Kahani, Meri Zuban. Welcome to the first episode of Jaane Anjane Season 2 with me, Rajiv Mathur. I am delighted and privileged to have Dr. Suchin Bajaj, who is the founder director of Ujala Cygnus Hospitals. Suchin is a highly qualified medical scholar. After completing his MBBS from PGIMS Rohtak, he did his doctorate in internal medicine from Dr. SN Medical College, Jodhpur in 2004. Dr. Bajaj is the recipient of British government's Chevening Gurukul Fellowship for Leadership and Excellence Award at King's College, London. He was also selected for fellowship at INSEAD, France. Suchin is also an Aspire Fellow, a fellowship dedicated to enlightened social leadership held at IIM Ahmedabad. He has also completed the Elite Seed Transformation Program conducted by the Stanford Global Business School. Suchin has also appeared on FM radio, leading multiple campaigns on COVID education, vaccination, myth busting and plasma donation. He has also been very visible on TV and social media for all these efforts. Dr. Suchin Bajaj, जाने अनजाने में आपका बहुत-बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत अच्छा लग रहा है। It's a great pleasure and privilege to be on your show. Thank you so much for having me. Dr. Suchin, first of all, please tell us about Ujala Cygnus, and also we would like to know from you the project step 1 that you are associated with. Ujala Cygnus is a group of hospitals that is dedicated to providing high quality healthcare at very, very low cost to communities that do not have access to high quality healthcare. See, if you're living in small towns, if you are unlucky enough to have a heart attack or a head injury, you have no other choice but to hire a jeep, क्योंकि ambulances भी उतनी easily नहीं मिलती हैं वहाँ पर, and if they are available, they are not very highly equipped or well equipped with machines and good quality human resources. So you just hire a jeep and then travel with the patient towards the nearest big city with the hope that you will reach and the patient will be alive. And of course आप समझ सकते हैं कि कितना harrowing time होता होगा वो अटेंडेंट्स के लिए, जिनके एक साथ में जीप में एक हार्ट अटैक का मरीज लेटा है और वो ट्रैफिक में अटके हुए हैं और अपने भाई या अपने पिता को देख रहे हैं तकलीफ में और जाते हुए और हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे शहरों में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज देने के एम से ये उजाला सिग्नस का मुहिम शुरू किया गया था ड्यू टू सम पर्सनल स्टोरीज, एंड नाउ वी हैव 16 हॉस्पिटल्स डेडिकेटेड टू providing high quality
tertiary healthcare like cardiology, neurosurgery, intensive care, blood banks, dialysis facilities, any condition in which the golden hour is of importance and in which you run the risk of losing your life while traveling to the big city that is closest to you, maybe 4 hours away or 6 hours away. And we have 16 of these hospitals, each ranging between 100 to 300 beds, and all of them, as I said, high quality, so all of them are NABH accredited. We are very sure that if you are building hospitals for poor people, it does not mean you build poor quality hospitals. So the hospitals that you build should be good enough कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो खुद अपना इलाज आप वहाँ कराएं. तो मेरी बिटिया हमारे एक हॉस्पिटल में ही पैदा हुई है, मेरे बेटे की 2 सर्जरीज एक हमारे ही हॉस्पिटल में हुई है. तो हम ये बहुत ही इसी हिसाब से बनाते हैं कि ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए तो बना रहे हैं लेकिन खुद आप दूसरे 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए. मेरी वाइफ एक हमारे हॉस्पिटल में ही काम करती हैं, तो शी प्रोवाइड्स हर क्लिनिकल सर्विसेज देयर कम्प्लीटली. सो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और 4 प्रदेशों में है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और 17th हॉस्पिटल हम जम्मू कश्मीर में खोलने वाले हैं अगले महीने. सो जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, आप देखिए उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में आप देखिए कुमाऊं बेल्ट पूरा देखिए, पीछे नेपाल तक कोई कैंसर फैसिलिटी नहीं है, कोई इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं है. आप सबको कुमाऊं पूरा, नेपाल कुमाऊं पूरा नीचे उतर के आना पड़ता है बरेली तक या दिल्ली तक. ऐसे ही कश्मीर में अगर आप किसी को इंटेंसिव केयर चाहिए, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में इंटेंसिव केयर बहुत कम है कश्मीर में, तो वो सब लोग फ़्लाइट लेकर चंडीगढ़ या दिल्ली आते हैं, तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर. तो ऐसी चीज़ें हम कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने की लोगों को, और बहुत ही लो कॉस्ट पर. वी हैव बीन चैम्पियंस ऑफ आयुष्मान भारत सिंस इट्स वेरी लॉन्च. वी वर द फर्स्ट वंस टू डू heart angioplasty under the Ayushman Bharat scheme. We were the first ones to be awarded the golden certificate by the government of India for excellence under Ayushman Bharat. In fact, out of the first 10 hospitals in the country, 4 were our hospitals. So, and Project Step 1 is something that I am very close to. It is close to my heart. It was started as a small WhatsApp group of founders who wanted to do something to help in the COVID wave, because we understood that it would be so big that governments would not have enough resources to do it. Started out as a small WhatsApp group. In fact, in Delhi, I was the first doctor to start calling the patients myself. सुबह 7 बजे मैंने शुरू किया था कॉल करना, जब कोई डॉक्टर नहीं था दिल्ली में. उस पर धीरे धीरे बढ़ने लगा वो, और लोग जुड़ने लगे उसमें. और जो 1-2 लोगों से शुरू हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप, आज उसमें 12,000 डॉक्टर्स वॉलंटियर करते हैं, फ्री में बिल्कुल काम करते हैं. दे हैव नो पे, नो सैलरी, नो रेन्यूमरेशन, नो रिकग्निशन. वी डोंट इवन हैव एन ऑफिस, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. मैं आधे से ज़्यादा लोगों को मिला नहीं हूँ प्रोजेक्ट स्टेप 1 में जो काम करते हैं कोर ग्रुप लेवल पर. डॉक्टर्स लेवल पर तो 99% लोगों से नहीं मिला हूँ 12,000 में से. कुछ कोर ग्रुप मेंबर्स हम पहली बार मिले थे जब पौंडीचेरी में हमारे काम को सराहने के लिए रिपब्लिक डे परेड पर LG थी उस टाइम, किरण बेदी जी, उन्होंने हमें बुलाया था वहाँ का ऑनर देने के लिए. तो हम लोग जब पौंडीचेरी पहुँचे तो पहली बार कुछ लोग मिले कि अरे हम इतने महीनों से काम कर रहे हैं, मिले आज पहली बार है. सो दैट इज़ अ प्रोजेक्ट दैट इज़ across now 21 state governments, has made millions of calls, more than 4 million calls, 40 lakh calls to patients till today, and prevented more than 10 lakh new infections due to our initiatives on home isolation and quarantine management, plasma banks, the vaccines, etc. तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, और वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है उसको देखना भी. तो वो चलता है मोस्टली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ. उजाला सिग्नेस कॉम्प्लीमेंट्री, इट वर्क्स टुवर्ड्स मोर ऑफ टर्शरी केयर एंड लाइफ सेविंग केयर. तो प्रोजेक्ट स्टेप 1 से हम कोशिश करते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े, और उजाला सिग्नेस से करते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल आ गए हैं तो एटलीस्ट आपके घर खेत ना बिक जाएं, आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो, और आपको हेल्थ केयर रिजल्ट भी अच्छा मिले. तो फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल दोनों आउटकम्स अच्छे हों, वो हम कोशिश करते हैं आपके लिए. Thank you, Dr. Suchin, for sharing this with us, and our sincere gratitude and thanks to you and compliments to you for what you are doing in Ujala Signals as well as in Project Step 1. So, जैसा कि जाने अनजाने में हम बोलते हैं कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो हम आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं
from your childhood, from your parents till where you have reached now? My parents came from a very humble background. In fact, they were refugees into India who came to the country with nothing but the shirts on their back. उस टाइम तो आपको पता है भागकर इंडिया में आने में जान ही बच जाए तो वही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि आप पहुंच गए कम से कम. तो मेरे फादर 14 लोग थे उनके परिवार में. माय फादर वाज द यंगर सन बट ही हैड यंगर सिबलिंग्स, बहुत सारे कजन्स. तो 14 लोग थे. वो एक अस्तबल में रहते थे, 10/8 10/8 का एक हॉर्स स्टेबल उनको अलॉट हुआ था जब वो आए थे. तो उसमें वो 14 के 14 लोग रहते थे. ऑफ कोर्स माय ग्रैंडफादर देन डाइड वेरी सून बिकॉज ऑफ द शॉक कि ये में क्या हो गया, सब कुछ लुट गया, कुछ है नहीं. सो माय ग्रैंडमदर एंड ऑल हर चिल्ड्रन यूज्ड टू लिव टुगेदर इन दैट हॉर्स स्टेबल एंड दे यूज्ड टू मेक काइट्स फॉर अ लिविंग. पतंग बनाकर बेचते थे रोज़. और मेरे पिताजी का काम होता था मांझा चढ़ाना पतंग पर, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी गुड एट एक्चुअली मेकिंग द काइट्स. वो मांझा चढ़ाते रहते थे. सो बट ही अंडरस्टूड दैट दिस इज़ नॉट द वे आउट ऑफ पॉवर्टी. पतंग बनाते ही रहेंगे तो दे कुड हार्डली गैदर इनफ टू ईट. खाने भी पूरा नहीं मिलता था कभी कभी. तो कितना आप और करोगे. कभी रिक्शे का कुछ काम किया, कभी ठेले का काम किया, कुछ कुछ और जॉब्स करते रहते थे. तो ही अंडरस्टूड कि पढ़ाई से ही मुझे इस गरीबी से निजात मिलेगी. सो ही स्टार्टेड स्टडिंग. ही वो हमें ये बताते कि मैंने अपने दिल में ठान लिया कि अब मैं पढ़ूंगा बस, और मुझे पढ़ के कुछ ना कुछ अफसर बनना है कुछ. सो अब पढ़ते थे तो लेकिन वो प्रॉब्लम थी कि घर में जो अस्तबल में रहते थे उसमें पिटाई होती थी, क्योंकि दिन भर तो काम करना ही पड़ता था. तो रात को पढ़ते थे. रात को जब वो दिया जलाते थे पढ़ने के लिए तो बाकी भाई बहन पीटते थे उनको कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, पूरा दिन काम किया, अब तुम ये रात में बत्ती जला के बैठे हो और बाय चांस तुम्हारा दिया इधर उधर हुआ और पतंग में अगर आग लग गई तो फिर तो सोचो गए, फिर तो अगले 5 दिन खाना नहीं मिलेगा हमें. तो उनको दिया जलाने नहीं देते थे. तो देन ही found out a way that he came out and then climbed onto the roof of that horse stable and started studying there. But it was not easy to climb. It was smooth walls, पुराने ज़माने के पत्थर से बना था. वो चढ़ के किसी तरह जाते थे. तो finally he found a rope which he strung from that roof and he used to climb up that rope. So he climbed onto the roof of the horse stable. एक रस्सी उन्होंने इकट्ठी की. फिर because his house was very near the old Delhi railway station at that time, so वहाँ पर कुछ कुछ मालगाड़ी आते ही रहते थे और वो लोग सामान पैक करके फेंक देते थे. तो ही गैदर्ड सम स्टफ, कुछ कहीं से टीन ले लिया, कुछ प्लास्टिक ले लिया. सो उन्होंने अपने अस्तबल के छत पर एक छोटा सा ड्वेलिंग बना लिया, टेम्परेरी सा प्लास्टिक और टीन का. वहीं पढ़ते थे. एंड ही lived there for a very long time. In fact, he got married there. My sister was born there. And when my mother was pregnant with my brother, she fell off that rope, finally trying to climb up. और हमें ये लगता है कि उन्होंने जानबूझ के ही किया होगा, क्योंकि उनको लगता था ये तो शिफ्ट होंगे नहीं, अदरवाइज मैं कब तक यहाँ रहूँगी, कितने साल यहाँ रहूँगी. एंड वी ऑलवेज यूज टू टीज आवर ब्रदर कि तुम्हारा दिमाग इसलिए थोड़ा सा हिला हुआ है क्योंकि माता जी गिर गई थी जब तुम उनके पेट में थे. सो दैट वाज अ रनिंग जोक इन द फैमिली. फाइनली दे शिफ्टेड टू रेंटेड अकोमोडेशन. दे लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट made sure that we all studied a lot. So my father was very, very strict. He was one of the strictest fathers I know. That he made us study a lot. पढ़ाई होती थी at the threat of physical harm. And so my sister, my brother and I all studied well and fortunately got through the entrance exams of the medical college. So भारत के education system का ये बहुत फ़ायदा है. Government colleges are next to free if you do manage to crack those exams. Of course those exams are difficult to crack because lakhs of people appear for a few hundred seats. So वो मेरी 400 रुपये साल की फीस होती थी, I remember. So that was easy to do once you did get into it because there was no financial pressure. And then I came back after finishing my MD, Delhi के one of the biggest hospitals में I was there. Then all these stories, as I told you in the earlier part, started that my family was still not very well off. काफ़ी लोग अभी भी struggle कर रहे थे poverty से निकलने के लिए. So many of my cousins still किसी का मोटर गैराज है, कोई एक कार ड्राइवर की तरह काम करता है, एक कोई बस कंडक्टर की तरह, एक का फ्रूट स्टॉल है, एक का जूस स्टॉल है.
तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पॉवर्टी से क्लाइंब अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी हेल्प मतलब उनके फ़ोन्स आते थे कि डॉक्टर साहब किसी को हार्ट अटैक हो गया है, किसी को सर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कैन यू हेल्प अस। एट द वन एंड आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूँ। आई एम अ डॉक्टर नाउ, पढ़ाई लिखाई कर ली है। But on the other hand, of course, it always felt कि why do these people have to travel 5-6 hours? Why don't they have these facilities closer to their house in the towns that they live? And कई बार तो रात को पहुंचते ही नहीं थे और सेल फोन्स इतने कॉमन नहीं थे, तो हम वेट करते रहते थे। अगले दिन सुबह फिर पता चलता था तो बोलते थे डॉक्टर साहब वो तो रास्ते में ही ख़त्म हो गया, और हम लोग वापस मुड़ के आ गए और घर पे ही अब तो दाह संस्कार हो रहा है। तो फिर उनके फ्यूनरल पे जाते थे, बातचीत होती थी, तो यही कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि डॉक्टर साहब चलो शायद अच्छा है, शुक्र है कि ये रास्ते में मर गया। पिछले वाला जो पहुँचा भी था वो 15 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसका घर भी बिक गया, खेत भी बिक गए, और फिर मर गया। और अब देखो उसकी विधवा तो भीख मांग रही है सड़कों पे। तो कम से कम इस वाले के शायद बच्चों का कुछ हो जाएगा। तो ये सब न्यूज़, कहानियाँ, पर्सनल स्टोरी सुन सुन के लगता था कि सिर्फ फिजिकल आउटकम्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल आउटकम्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो जान बचे तो घर भी बचे, तो ऐसा कुछ सोल्यूशन देना चाहिए। तो इसी तरह ये धीरे धीरे हॉस्पिटल शुरू हुए एक एक करके। ऑब्वियसली मैंने बताया जैसे पैसे बिल्कुल नहीं थे हमारे पास, तो किराए से शुरू किए, और पैसे ना होने की वजह से ये एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल बन गया कि किराए पर ही लो बिल्डिंग क्यों बनानी है, ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज उससे पहले था कि हॉस्पिटल बनाने के लिए भैया लैंड चाहिए, फिर एक बिल्डिंग चाहिए बड़ी सी, उसमें इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बट जब आपके पास चीज़ें नहीं होती हैं तो आप उसके सोल्यूशंस जब ढूंढते हैं तो ऐसे मिलेगा कि भैया क्यों लैंड खरीदनी, क्यों बिल्डिंग बनानी है, किराए पे लीजिए आप, क्या ज़रूरत है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की। तो बहुत कम में बनने लगे वो हॉस्पिटल, लोगों को समझ आने लगा कि ये तो एक बिजनेस मॉडल है ऐसा। तो लोगों ने इन्वेस्ट किया, पार्टनर्स मिलने लगे, लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगा, तो एक एक करके ऐसे 16 हॉस्पिटल बने। बट क्योंकि मैंने वो जहाँ जो दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में मैं कोर्स कर रहा था वो छोड़ के मैंने शुरू किया, तो पिताजी ऑब्वियसली बहुत नाराज़ हुए। माई एंटायर फैमिली वॉज वेरी अपसेट। पिताजी बोले कि पढ़ाई छोड़कर अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, इट इज़ नॉट वर्थ इट। सो टिल द डे ही डाइड, he did not visit even one of our hospitals. He's never seen any of the hospitals that I worked in, and he was always very angry with me कि तुमने पढ़ाई छोड़ के किया है। So the day his anger subsided was the day when रात को 3 बजे मेरे एक कज़न हैं जो पानीपत में रहते हैं, तो उनके फादर यानी मेरे फादर के कज़न, मेरे सेकंड कज़न में, उनको हार्ट अटैक आया। वो पानीपत के एक हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर उनको बोला गया बहुत बड़ा हार्ट अटैक है, हम नहीं मैनेज कर सकते हैं, आप दिल्ली लेके जाइए। पानीपत से बाहर निकलते ही रात को 3 बजे उनको याद आया कि अरे उसने मुझे बोला था। तो उन्होंने 3 बजे मुझे फ़ोन किया कि अरे तुमने कुछ बोला था ना पानीपत में हॉस्पिटल खोला है। मैंने कहा हाँ जी खोला है। बोले है भी वो चल। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। और वो बोले पिताजी की बहुत तबीयत ख़राब है। मैंने कहा आप तुरंत लेके जाइए। सो ही टर्न्ड अराउंड, वेंट इनटू द हॉस्पिटल। व्हेन ही रीच्ड द हॉस्पिटल ही वाज क्लिनिकली डेड। ही हैड अ फ्लैट लाइन ऑन द ECG, सांस नहीं ले रहे थे। इमीडिएटली उनका CPR किया गया, ट्रीटमेंट शुरू किया गया, कैथ लैब में लिया गया। रात को कार्डियोलॉजिस्ट ने तुरंत आर्टरी उनकी खोली जो 100% ब्लॉक थी, स्टेंट डाला और वो बच गए। तो उस दिन मेरे पिताजी ने बोला कि शायद तुम कुछ ठीक कर रहे हो, बिकॉज ही कुड नेवर हैव रीच्ड दिल्ली, क्योंकि पानीपत में ही वॉज ऑलरेडी गॉन। तो दिल्ली अगर वो 2 घंटे लेके चलते तो डेफिनेटली नहीं पहुंच पाते। तो उस दिन पिताजी ने बोला कि नहीं शायद कुछ ठीक ही कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट ऑल दैट रॉन्ग। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड luckily, as I said, good people came in and helped us, and now we have 16 of these hospitals, each ranging between 100 to 300 beds, and focusing on high quality healthcare for communities that do not have financial or geographical access. So my lifelong dream is to completely dissociate access to good quality healthcare from your financial, social or geographical status. It should not matter कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। अगर आपको अच्छे हेल्थ केयर की ज़रूरत है तो आपको मिलनी चाहिए। इट इज़ योर राइट। दैट इज़ व्हाट आई ड्रीम अबाउट। ये हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका जवाब मालूम है कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो डेफिनेटली टीचर बनता, बिकॉज एज आई सेड बोथ माई पेरेंट्स, माई फादर वॉज अ प्रोफेसर, माई मदर वॉज अ स्कूल टीचर, एंड I spent a lot of time
being educated, as I said, at the threat of physical harm also, कि पढ़ाई कर लो वरना तो तुम्हारी ये होगा, पढ़ाई करो वरना पिटाई होगी, पढ़ाई करो. And it's not that I wanted to be a teacher because I was inspired by all these teachers around. I wanted to be a teacher because I always thought I could do a better job than them. I thought ये पढ़ाई लिखाई कराने के लिए इतना पिटाई क्यों करना पड़ता है, आराम से पढ़ाओ, आप देखो इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाओ, सब बच्चे पढ़ते हैं, सब समझदार हैं. Why do you need to threaten them कि ऐसा होगा नहीं तो ऐसा होगा, पढ़ाई कर लो नहीं तो ये होगा. So I always thought that I could do a better job than all my school teachers and all my medical school teachers that I found and interacted with. So that was my lifelong dream. But then of course I was very inspired by my sister as well, who was the path breaker in the family. She was the eldest daughter in the house, and वो उस टाइम की लड़कियां, जब उस टाइम में लड़कियों को इतना एक बर्डन की तरह माना जाता था. आज भी कुछ फैमिलीज मानती हैं ऐसा, और काफ़ी रिलीजियस रिचुअल्स में भी लड़कियों का रोल नहीं होता था कि बेटे के लिए हो रहा है, ये वाला व्रत बेटे के लिए, ये खाना बेटे के लिए बना है. सो शी वॉज द वन हू ऑलवेज स्टूड अप कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे लिए करो, तो लड़की के लिए होना चाहिए. एंड शी मैनेज टू गेट ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स एंड द रिलेटिव्स टू चेंज देयर कस्टम्स कि भाई बड़े बच्चे के लिए करना है तो बड़ी लड़की मीन्स अगर लड़की के लिए करो. सो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय हर, एंड she always was and still continues to be a fighter in her life. She is a big she changes all the set patterns. She does not go for any social norms or more. So she became a doctor. So I thought मुझे भी डॉक्टर बनना है. But that is where the inspiration ended, because as soon as she became a doctor, she was very clear कि I have to climb out completely from the old life. Said कि मैं US जाऊंगी, मतलब इंडिया छोड़ना है बिल्कुल. I want to be a successful doctor in the US, and I completely went the other way. तो I said कि दिल्ली भी नहीं, भारत में जाना है, छोटे शहरों में काम करना है. So she always used to tell me आजा तू US मेरे पास, and I was like नहीं, I want to work here. So अब हम उत्तराखंड में हॉस्पिटल चलाते हैं. So the joke in the family is that she went to the US and I went to the UK. But UK is Uttarakhand for me. So this is how our careers are. But yeah, that was how I was inspired. But if not a doctor, I would definitely have been a teacher. पिछले 2 सालों में इस पेंडेमिक के दौरान और जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हुई होंगी जो दिल को छू लेने वाली होंगी. बिल्कुल, दोज आर वेरी हार्ट टचिंग. But at this platform, we want to know from you that is there any one incident that you want to share with our viewers today? Yeah, pandemic was very dark times, of course. इससे बुरा हाल हमने नहीं देखा कभी. I could never have imagined कि healthcare ऐसी situation में पहुंच जाएगा जहां चीज़ें which we take for granted कि ये valve open किया और ऑक्सीजन खुल गई, और ये तो हर बार ही होता है. 30 साल से मेडिकल लाइन में तो ऐसे ही होता है. And then you realize कि नहीं, valve कितना भी खोलते रहिए, there is no oxygen even, there are no masks available, there are no PPE kits available, there are no medicines available, कुछ भी नहीं है. And you have to work like जो पुराने ज़माने में हमारे को कहानी सुनाई जाती थी कि चाइना में हम लोग लड़े थे पहाड़ों में कैनवस के जूते पहन के और कॉटन की शर्ट पहन के. तो ऐसा ही लग रहा था कि ना गोलियां हैं ना कुछ हैं और लड़ रहे हैं. तो बट एक सिल्वर लाइनिंग ये थी कि ह्यूमंस की इनेट गुडनेस में वापस फेथ जगा. जैसा मैंने बताया, प्रोजेक्ट स्टेप 1 में 12,000 डॉक्टर्स आए वॉलंटियर करने अपना टाइम. कोई ऑफिस नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं, एंड एवरीबडी इज़ कॉलिंग पेशेंट्स, और पेशेंट्स की डांट भी सुन रहे हैं, पेशेंट्स की फ्रस्ट्रेशन भी सुन रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और अगले दिन फिर उनको कॉल कर रहे हैं. तो ऐसे 12,000 डॉक्टर्स ने किया वॉलंटरली, विच वॉज आई थिंक अ बिग टेस्टमेंट that all of us are good. We just need a structure and a platform to go and do that good in. क्योंकि कई बार लोगों को लगता है अकेला मैं क्या करूँगा, अकेला क्या चना भाड़ फोड़ेगा, इसीलिए शायद वो अच्छा नहीं करते. बट उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए तो एवरीबडी वांट्स टू कम एंड डू समथिंग गुड फॉर द वर्ल्ड. एक हमें कैपेबिलिटीज़ पे बहुत लर्निंग मिली कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो सच में इतनी है कि आप चांद तक जा सकते हैं अगर आप चाहें तो सेकेंड वेव में जब बेड्स की बहुत शॉर्टेज हो रही थी, तो हमने दिल्ली सरकार से बात करनी शुरू की कि बेड्स और कैसे अरेंज किए जाएं. तो मुझे याद है 23 अप्रैल को पहली मीटिंग हुई थी सेक्रेटेरिएट में इसके लिए कि कैसे बेड्स अरेंज किए जाएं. और 1 मई को यानी 7 दिन बाद हमने 1000 बेड का फुल्ली ऑक्सीजनेटेड
हॉस्पिटल ऑपरेशनल कर दिया था बुराड़ी में, जो कि एक फील्ड हॉस्पिटल था, एक ग्राउंड में बना, और 7 दिन में चालू हो गया। पेशेंट पहले एडमिट हो गया और उसके बाद ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स केम इन एंड वी वर कवर्ड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स इवन, कि देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात कि देयर वाज जीरो मोर्टेलिटी इन दैट हॉस्पिटल, नॉट इवन वन पेशेंट डाइड, विच वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और ये 7 दिन में हमने चालू किया, विच नोबडी हैड इवन थॉट कि इसका पॉसिबल है। लोग 10 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए भी इतने प्लान्स करते हैं, इतना कुछ सोचते हैं। तो ऐसा लगा कि हाँ, ये एक रिन्यूअल है फेथ में आपके। बट ऑब्वियसली ये सारी स्टोरीज फीकी पड़ जाती हैं ह्यूमन स्टोरीज के आगे, और ह्यूमन स्टोरीज इतनी थी उस पैंडेमिक में, लोगों ने जो जो काम किए। मुझे याद है कि हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर लोग, वो खुद बीमार पड़ गए। और मई में आपको याद है जब सेकंड वेव आया था, बहुत गर्मी थी, इट वाज इमेंसली हॉट, और पीपी किट्स पहनकर पूरा गीले। मुझे याद है मैं जब उतारता था वो पीपी किट, कम से कम 2 किलो वजन कम हो चुका होता था, इतना पसीना होता था अंदर। सो ही टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब तो देखो मैं बीमार ही हो गया हूँ, 16 बेड और हैं इस वार्ड में, तो अच्छा मैं ही देख लूँगा, आप क्यों आते हो, और मुझे पीपी किट भी नहीं पहननी पड़ेगी गर्मी में, तो मैं आराम से देख लूँगा। एंड आई वाज अमेज्ड, मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप, तो खुद ही बीमार हो गए। तो क्या हुआ, मैं मैनेज तो कर लूँगा ना, बाकी भी यहाँ है, मैं देखता रहूँगा। एंड दिस वाज जस्ट द फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट सो मेनी ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स फेल सिक एंड दे मैनेज्ड देयर पेशेंट्स, केप्ट सीइंग द पेशेंट्स व्हाइल दे वर सिक। और बहुत सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के क्लोज रिलेटिव्स की डेथ हुई, फादर्स की, चाचा की, भाइयों की। वो लोग गए, 1 दिन के लिए गए, पूजा वूजा करके वापस, अगले दिन वापस एवरीबडी वाज ऑन ड्यूटी। तो आपने बहुत सुना होगा उन दिनों में, जैसा बताया कि ऑक्सीजन कम हो गई, दवाइयाँ ब्लैक में मिल रही हैं, पीपी किट्स नहीं है, मास्क का रेट 100 गुना हो चुका है। लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है या नर्सेज अवेलेबल नहीं है किसी हॉस्पिटल में। तो हर हॉस्पिटल में लोग खड़े रहे, डटे रहे, लड़ते रहे। और बहुत बड़ा एक ये मेरे ख्याल से मेडिकल फ्रेटर्निटी का एक अचीवमेंट रहा, दैट नोबडी स्टेप बैक एंड एवरीबडी केप्ट कंटिन्यूइंग टू फाइट, इवन दो बहुत डेथ्स हुई, बहुत सेलिब्रिटी डॉक्टर्स की डेथ्स हुई जो बहुत फेमस हुई, और आसपास बहुत लोग बीमार पड़े, बट कोई वापस नहीं हटा, सब लोग डटे रहे और बीमार पड़ने के बावजूद भी अपनी ड्यूटीज़ करते रहे। आई थिंक हैट्स ऑफ एंड अ बिग सैल्यूट टू ऑल the healthcare workers and colleagues that worked with us during that pandemic. So Dr. Bajaj, tell us what's in store for all of us for next 6-8 months, 1 year time, and what is going to happen about this coronavirus, and what's your advice to all of us in this situation? देखिए, वायरस अब मोस्ट लाइकली एंडेमिक स्टेज की तरफ जा रहा है। जैसा कि पिछले स्पेनिश फ्लू जो 1 सेंचुरी पहले आया था, उसका रेमिनेंट और वेरिएंट एक कॉमन कोल्ड की तरह रहा, वैसे ही अब उम्मीद करते हैं कि ये वायरस भी म्यूटेट होकर ऐसा हो रहा है कि इट इज़ स्प्रेडिंग फास्टर बट बिकमिंग मोर लीथल एंड बिकमिंग लेस लीथल ऑफ कोर्स, एंड विच इज़ व्हाट वी आर सीइंग इन दिस करंट वेव ऑल्सो। अगर आप देख रहे हैं लाखों में केसेस हैं, बट हॉस्पिटल्स अभी भी खाली हैं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो सेकेंड वेव में था। तो उम्मीद है कि यही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वायरस के इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि अगर उसको ज़िंदा रहना है तो होस्ट को ज़िंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि वायरस कैन नॉट लिव आउटसाइड द होस्ट, इट डाइज वेरी क्विकली। सो इफ द होस्ट डाइज द वायरस ऑल्सो डाइज। सो वायरस के इंटरेस्ट में भी है कि वी शुड कीप लिविंग एज वी आर, वी शुड कीप स्प्रेडिंग द वायरस अराउंड सो दैट इट सर्वाइव्स, and this can only be done if it becomes very very highly transmissible but very less lethal. So उम्मीद है अब यही हो रहा है, and in the next 4 to 6 months we should be going towards the new normal. New normal means जैसे मीटिंग्स हम ऐसे ही करते रहेंगे जैसे अभी कर रहे हैं ऑनलाइन, बट लेजर के लिए ट्रैवल वापस शुरू हो जाएगा, एंड आई थिंक वी कैन लुक फॉरवर्ड टू easing of all restrictions within 2-3 months. But till that time, please keep wearing your masks and get vaccinated very quickly. So we have known about you as a professional, but before we come to the close of the program, और ये सवाल जो है मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग है इस पूरे कार्यक्रम का, that who is that one person who knows the best about you? I think my wife is the person who knows me the maximum, time wise also and closeness wise also. हम लोग फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में मिले थे और 30 साल हो गए उस बात को, तो तब से हम साथ हैं, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क टू गेट हर टू अग्री कि हाँ भाई हम साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। तो बिल्कुल शुरू में तो बहुत बार उन्होंने मना किया मुझे,
बट मैं भी बड़ा परसिस्टेंट था। जैसे मैंने कहा, किसी चीज़ में अगर एंटरप्रेन्योर सोच लेते हैं तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है कि हाँ मुझे यही करना है, तो यही करते रहते हैं। तो मैं काफ़ी परसिस्टेंट था, तो फाइनली वो मान गई और 30 साल से हम इकट्ठे हैं। और मेरे ख्याल से वो काफ़ी जानती हैं मुझे, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बट शी नोज अ लॉट अबाउट मी विच आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स नोज। इवन समटाइम्स आई डोंट नो, बट शी अंडरस्टैंड्स अ लॉट। Thank you so much for sharing this, and I would like to take this opportunity to invite her. I would like to invite Dr. Ekta Bajaj on our show here. Welcome, Dr. Ekta, and thank you for coming on our show जाने अनजाने। अभी हम डॉक्टर बजाज से बात कर रहे थे और हमने इनसे पूछा that who is that one person who knows best about you, and obviously he took your name, so thank you very much for coming on the show. ये हम जानते हैं कि आप और डॉक्टर बजाज MBBS के पहले साल में मिले थे और एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं that what do you do, डॉक्टर एकता? थैंक यू राजीव जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मैं भी डॉक्टर हूँ एंड 93 में हमने एक साथ ही MBBS ज्वाइन किया था रोहतक में, एंड 10 years आई स्पेंट इन रोहतक। पहले MBBS किया, फिर MD गायनी किया वहीं से। उसके बाद दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया 3-4 साल। फिर उसके बाद मैंने मोस्टली दिल्ली के स्लम्स में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट काम करना शुरू किया, एंड इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। मैंने दिल्ली के स्लम्स जैसे कि सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई, निहाल विहार, इन एरियाज़ में बहुत काम किया है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुचिन बजाज एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशनल कैसे हैं, ये हम इनसे बात कर रहे हैं और जान रहे हैं, बट सुचिन बजाज एज ए पर्सन क्या हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। डॉक्टर बजाज मेरे को 93 में मेडिकल कॉलेज में मिले थे रोहतक में, और पहले दिन से ही एक कनेक्ट हो गया था। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं ये कहना चाहूँगी उनके आसपास जो भी लोग हैं वो बहुत लकी हैं, और ही इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज फ्रेंड्स, फॉर कलीग्स, फॉर एवरीबडी। सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। और उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है, फेलियर्स को कभी भी, फेलियर्स देख के कभी बैठ नहीं जाते। ही ऑलवेज कीप्स ट्राइंग, और वो भेड़ चाल वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। जो उनको सही लगता है वो अकेले ही करना शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी बहुत ही अच्छी बात है, और अपने फेलियर सक्सेस से अपनी फैमिली को, किसी को भी अफेक्ट नहीं होने देते। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बहुत ही स्टेबल, इंटेलिजेंट इंसान है, मैं यही कहना चाहूँगी। Wonderful. Thank you very much, ma'am, for coming on the show, and thank you so much, Dr. Suchin Bajaj. आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, and it's a real indeed pleasure to be having you, both of you. May God bless you, और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार और बहुत-बहुत अभिनंदन। Please keep doing the good work. Thank you so much. Thank you so much राजीव जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत अच्छा लगा आपके शो पर आकर, इतनी अच्छी अच्छी बातें करके बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया।